ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے ابا کسی کے گھر چوکیداری کرتے تھے، اماں بھی انہی کے گھر کام کاج کرتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے مہیا ہوتی تھی۔ غریبی نے کمر توڑ کر رکھتی تھی۔ جس عمر میں بچے گڈے گڑیاں سے کھیلتے ہیں، اس عمر میں ہم نے 2 نوالے روٹی کے لیے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ جس رات روٹی مل جاتی، ہماری ہر وہ رات عید ہو جاتی۔ ابا جس گھر میں کام کرتے تھے وہ مالکن بہت سخت مزاج تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے جن کو مالکن کے گھر جانا سختی سے منع تھا۔ بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے۔ ہر روز اماں ابا جب گھر آتے تو گھر کم اور بھوت بنگلہ زیادہ بنا ہوتا تھا۔ گندے مندے کپڑوں میں چہرے پر مٹی کے داغ لگ کر خشک ہو گئے ہوتے۔ اکثر اماں ابا کو کہتی کہ بچوں کی حالت دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں۔ لاوارثوں سے بھی گئے گزرے ہیں ہمارے بچے اور ان کی حالتیں۔ ابا بھی پریشان رہتے تھے۔ میری سب سے بڑی بہن دل کی مریضہ تھی۔ اس کو ڈاکٹر نے تعمر آرام کا بولا تھا۔ اماں ابا اس کے علاج کے لیے ہر وقت پیسے جوڑتے رہتے تھے۔ میں چوتھے نمبر پر تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ میں ہی تھی جو اگنور ہوتی تھی۔ اماں ابا کو بڑی بہن کی فکر کھائی جاتی تھی۔ ایک روز گھر پر ہی کوئی بھی نہیں تھا جب میری بڑی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میری جان نکل گئی جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میری چیخیں پورے گاؤں نے سنی تھیں۔ جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے بہت حساس تھی، بچی تھی، جس وجہ سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی کہ اب اماں ابا ہم سے بھی پیار کریں گے، کیونکہ بڑی آپا تو رہی نہیں تھی۔ یہ وہ پہلی بری سوچ تھی جو میرے دماغ میں آئی تھی۔ میرے حساب سے اماں ابا بس بڑی بہن کو ہی پیار کرتے تھے۔ اماں ابا کو جلدی سے بلایا گیا تو وہ ایسے رو رہے تھے جیسے بڑی بہن کے علاوہ کوئی دوسری اولاد ہی نہیں ان کی۔ مجھے اپنی مردہ بہن سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ مجھے اس سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بھی بڑے ہوتے گئے۔ اماں ابا سب سے ایک جتنا پیار کرتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا کہ اماں ابا کو میں نظر نہیں آتی۔ رمضان گزرا تو عید کے لیے اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اماں اور ابا شام کے وقت گھر لوٹے تو ان کے پاس کچھ پیسے تھے۔ ابا نے سب کو بازار جانے کا بولا۔ چاند رات تھی، ہم 3 بہنیں اور اماں ابا بازار کی طرف چل پڑے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں اتنی گہما گہمی دیکھ کر میرے ہوش میں یہ پہلی عید تھی جو ہم اچھے سے منا رہے تھے، ورنہ ہر عید پر ابا کی مالکن کی بیٹیوں کی اترن پہنا کرتے تھے۔ ابا نے ایک دکان پر رک کر سب کو کپڑے لینے کا بولا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ابا کے پاس ڈھیروں سارے پیسے دیکھے۔ ایک نئی غلط فہمی نے دل و دماغ میں جنم لے لیا کہ ابا کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ ہم پر خرچ نہیں کرتے۔ ابا نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر دکان والے کو دیے اور ہم سب کو ڈھیر سارے نئے کپڑے لے دیے۔ میں نے اماں سے بولا کہ مجھے جوتا چاہیے تو اماں نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا کہ اماں جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، ابھی تو ابا کے پاس ڈھیر سارے پیسے دیکھے تھے میں نے۔ مجھے لگا اماں ابا کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیل رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ میری سوچ کے مطابق اماں ابا کو پیسوں کا لالچ تھا۔ غربت نے دماغ اتنا مفلوج کر دیا ہوا تھا کہ چھوٹے سے دماغ میں بہت سی باتیں آ جاتی تھیں جو کم از کم مثبت ثابت نہیں ہوتی تھیں۔ عید بہت اچھے سے منائی گئی کہ جوتے کا دکھ بھول گیا۔ حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اماں نے گھر میں مزے مزے کے ڈھیر سارے پکوان بنائے۔ لذیذ پکوان دیکھ کر سب کے منہ میں پانی آ گیا، لیکن ایک بات جو سمجھ سے بالا تر تھی، اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا تھا؟ اماں ابا کے پاس تو جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ اماں ابا کبھی کسی کونے میں گھس کر باتیں کر رہے ہوتے تو کبھی کسی کونے میں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں ابا میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میری بڑی بہن کا رشتہ آیا، لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا، اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کو ہمارا غریب گھرانہ ہی ملا تھا رشتہ کرنے کے لیے۔ مجھے لڑکے میں کوئی کمی سی لگی تھی، جیسے وہ لوگ کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے جب اماں کو اس رشتے سے انکار کرنے کا بولا تو اماں مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ ان کے الزامات سن کر میری روح کام گئی جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی بھی بہن اچھی زندگی جیے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ رشتہ طے پایا تو میری بہن مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی۔ اماں نے کافی وویلا مچایا لیکن میری بہن نے ایک نہ سنی۔ شادی کی رات اس نے مجھے اپنے کمرے کے باہر بٹھا دیا۔ رات کا آدھا پہر تھا جب میں نے کمرے میں سے عجیب آوازیں سنی، جن میں رونے کی ایک نہیں بلکہ کئی آوازیں تھیں۔ میں نے کمرے کے دروازے پر جھانک کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری بہن اور بہنوئی کہاں چلے گئے۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں انہی قدموں پر واپس آئی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح میری بہن تیار ہو کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں ابا سے بدتمیزی نہ کیا کرو، اکثر اوقات جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔
और ये बात मुझे अपनी शादी के बाद अब समझ में आई है। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैं कुछ बोल ना पाई, ना कोई सवाल कर सकी, ना कोई जवाब दे सकी। मेरी बहन अपने साथ मुझे वलीमे के लिए एक घर ले आई। अम्मा ने मुझसे आते ही 100 सवाल पूछ डाले, जिसमें से एक सवाल ने मुझे हैरान किया। अम्मा ने मुझसे पूछा कि रात को बहन बहनोई को तंग तो नहीं किया था। मैंने महज ना में सर हिलाया और अपने कमरे में चले गई। सब बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन बाकी एक बहन की शादी बहुत लेट हुई। इसका शौहर मुझे बहुत अजीब लगता था। इसी वजह से मैं अपनी बहन को भी ज़्यादा नहीं बुलाती थी। पूरे घर वालों को मेरी हर बात से इख्तलाफ था। अब जब मेरी शादी की बारी आई तो अब्बा के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। मुझे हर नए दिन के साथ अम्मा अब्बा पर गुस्सा आता था। अक्सर औकात मैं इनको कई बातें भी सुना देती कि जब पैदा किया है तो पालने के लिए पैसे भी कमाने थे। अम्मा अब्बा हमेशा खामोश रहते। अक्सर तो अब्बा की आंखों में आंसू भी आ जाते, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस अपना आप अहम लगता था। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां भूख ने खुद गर्ज बना दिया था। इस वक्त मुझे बस पैसा चाहिए था। पैसे की हवस में मैं यहाँ तक भूल गई कि पैसा सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत काम है जो इंसान को पूरे करने होते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली जो शय थी वो बस पैसा था। पैसे के बगैर तो जैसे मैं मुकम्मल नहीं थी। मैंने अब्बा से एक ही बात कही कि मुझे लड़का वो चाहिए जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, जिसके पास ढेर सारे पैसे हों। अब्बा ने शर्म से निगाहें झुका ली और अफसोस भरी नज़रों से अम्मा की तरफ देखा, लेकिन अम्मा भी आंखों में आंसू लिए खामोश रहीं। अब इस बात में मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अम्मा अब्बा रोने लग गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब्बा ने रिश्ता देखना शुरू किया तो एक मामूली से घर का लड़का देखने के लिए आया। मैंने काफ़ी वबेला मचाया कि मुझे अमीर घराने में ही शादी करनी है, जैसे बाकी दोनों बहनों की शादियां की थी। अम्मा ने समझाने की कोशिश भी की कि जितने वो अमीर हैं इतने हमें भी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने अब्बा से बोला कि बाकी बहनों की दफ़ा क्यों ये बात ना सोची थी आपने। अब्बा मेरी हर बात पर ऐसे खामोश होते थे जैसे मैं उनको उनके गुनाह गिनवा रही हूँ। लड़का प्यारा था, उनको भी मैं पसंद थी, लेकिन मेरे पैसों को लेकर जिद ने ये रिश्ता बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। अक्सर औकात हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और ये वक्त के बाद पता चलता है कि हम किस वक्त में क्या कर चुके हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। काश इस वक्त अपने अम्मा अब्बा की आंखों में आए आंसुओं को मैं जान पाती, उनके पीछे छुपे दुख को पहचान पाती, तो आज इस मोड़ पर ना खड़ी होती जहां आज मैं हूँ। अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और ये परेशानी उनकी बीमारी में बदल गई। अम्मा ने कई बार समझाया कि उम्र गुजर गई तो कोई भी शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरी वही मुर्गी की एक टांग कि मुझे शादी करनी है तो बस पैसे वाले से। एक रिश्ता आया जो अमीर तो बहुत था, लेकिन वो मेरी उम्र से 2 गुना बड़ी उम्र का था। अम्मा ने तो देखते ही मुझे इनकार कर दिया कि तुम्हें कमारे बिठाना मंजूर है, लेकिन इस बुड्ढे से तुम्हारी शादी करवाना मंजूर नहीं। इसकी कमाई और पैसा देखकर एक बार तो मेरे होश उड़ गए थे। इस बुड्ढे आदमी की पहली शादी हुई थी, बीवी मर चुकी थी और उसके बच्चे मेरी उम्र के थे। अम्मा तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन मुझे इसकी उम्र पर उसका पैसा भारी लग रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे शादी करनी है तो यहाँ ही करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। वक्त ऐसा था कि अम्मा ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हें सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, एक वक्त आएगा जब तुम्हें पैसा नहीं एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होगी, जो तुम्हारे हर कदम के साथ साथ कदम मिलाकर चले। तब तुम्हें इसका पैसा नहीं बल्कि एक तुम्हारी ही उम्र का मर्द चाहिए होगा। लेकिन इस वक्त मेरे कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही थी। मैंने बाजिद होकर अब्बा से बोल दिया कि मेरी शादी करवा दें। अब्बा के कंधे झुके हुए थे। अम्मा भी दिन रात रोती रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं प्यारी नहीं थी, बस हालात ने मेरी शक्ल बिगाड़ दी थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा निकाह होना था। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, सो मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। जहेज के नाम पर उनको कुछ नहीं चाहिए था और फिर मेरे घर वाले दे भी क्या सकते थे। रुखसती के वक्त मेरे छोटे से घर के बाहर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरी तो आंखें खुल गईं। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर एक अजीब सा गुरूर दिल में आया, और गुरूर का सर तो हमेशा से ही नीचे है। रब ताला को भी मगरूर इंसान पसंद नहीं। मैंने कुछ जताती नज़रों से पीछे मुड़कर अपने बूढ़े माँ बाप को देखा, जो दरवाजे में खड़े मेरे मुस्तकबिल की बर्बादी का हिसाब लगा रहे थे, जो मेरी नज़रों से ओझल था। रुखसत होकर अपने शौहर के घर गई तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर नहीं था, इतना बड़ा महल। इतना बड़ा तो हमारा पूरा गांव नहीं था जितना बड़ा ये महल था। मेरा शौहर बुढ़ा था और उसको सांस का भी मसला था, जिस पर वो खांसते हुए मुझे तन्हा गाड़ी के पास छोड़कर अंदर चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर घर की तरफ देखकर मैं सब कुछ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी थी कि मेरे शौहर का सबसे बड़ा बेटा मेरे पास आया और मुझे बोला कि आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे हैरानगी हुई कि खुद तो सबने पसंद किया था, अब ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसे कह रहा है।
और मुकाबिल भी कोई और नहीं, सगा बाप है, जिसके लिए बेटा ही उठकर ऐसे बोल रहा था। मेरे शौहर की बेटी ने मेरा लहंगा पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। मेरी शादी बड़ी आम सी शादी थी। रवायती तौर तरीकों से ये शादी नहीं हुई थी। ना रास्ते में फूल थे, ना ही कोई वेलकम करने वाला था। मैं अपने शौहर की बेटी के साथ अंदर चले गई तो अंदर एक अलग ही जहां आबाद था। तरह तरह के नौकर ऐसे सर झुकाए मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे जैसे मैं कोई मलका आलिया हूँ। मेरे दिल में अजब सी खुलबली मची हुई थी। मेरे शौहर की बेटी ने सबसे मेरा तारुफ करवाया तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सब नौकर इतनी छोटी सी मालकन को देखकर कानों में बातें करने लगे। मेरे शौहर की बेटी ने मुझे कमरा दिखाया तो मैं इस कमरे की तरफ चले गए। मेरे कमरे के बाहर 2 नौकर खड़े थे, अदब से खड़े। वो मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। ये सब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। मैं कमरे में गई तो ये बहुत बड़ा कमरा था। प्यारी सी सजावट हुई हुई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। क्या किस्मत पाई थी, हर बहन से ज़्यादा अच्छी। मैं रवायती बीवियों की तरह अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। रात बीत गई लेकिन वो ना आया। उसे आना था, ना ही वो आया। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या है। रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह जब मैं उठी, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर जब याद आया तो आंखें मलती उठ बैठी। वक्त देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। आंखें हैरत से खुल गईं। कहाँ सुबह तहज्जुद के वक्त उठने वाली लड़की नरमो मुलायम बिस्तर पाकर दोपहर के 2 बजा दिए। मैं जल्दी से उठी और अलमारी खोली तो हैरत की इंतहा न रही। वहाँ इतने ज़्यादा कपड़े और इतने ज़्यादा जूते थे जितने मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में न देखे होंगे। मैंने जल्दी से एक सूट निकाला और तैयार होकर नीचे आ गई। मैंने एक दराज खोला जिसमें बेतहाशा सोना ही सोना था। मैंने अच्छे से जेवर पहना। मैं जैसे ही बाहर निकली तो रात वाले दोनों नौकर मेरे अदब में खड़े थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अकड़ कर चलते हुए नीचे आ गई, लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब पूरा घर खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने एक मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया कि मेरे शौहर के बेटे और बेटी पढ़ते हैं तो वो वहाँ चले गए हैं और मेरा शौहर अपने काम पर चला गया है। अब घर में या तो मुलाजिम है या मैं थी। मुलाजिम ने बाअदब अंदाज में मुझसे खाने का पूछा तो मैंने एक लंबी लिस्ट बना कर दे दी जो मैं खाना खाना चाहती थी। मुलाजिम ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और फिर सरखम करता अपने काम में लग गया। ठीक आधे घंटे बाद मेरे पास मेरा नाश्ता मौजूद था। मैंने जल्दी से नाश्ते से हाथ साफ किया और फिर पूरा घर घूमने चले गई। मैं सारा घर देख रही थी जब एक कमरे से मुझे खड़ाक की आवाज़ आई। मुझे पहले तो खौफ आया, फिर लगा कि कोई मुलाजिम होगा। मैं जैसे ही नॉब पर हाथ रख के दरवाज़ा खोलना चाहा तो न जाने कहाँ से बोतल के जिन की तरह एक मुलाजिम मेरे पीछे से आकर मुझे रोक गया। मेरी रूह कांप गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने आंखें फाड़कर मुलाजिम की तरफ देखा तो ये वही था जो दिन रात मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता था। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था और मुझे कहने लगा, यहाँ से चली जाएं, यहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है। पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 2 बातें सुनाई कि मैं इस घर की मालकन हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। जिस पर मुलाजिम तंसियाँ हंसा और बड़ी अजीब बात कह गया, दूर के डोल सुहाने। मुझे ताज्जुब हुआ। मैं वहाँ से सर मारकर वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ वक्त गुजरा तो एक मुलाजिम हाथ में फ़ोन पकड़े वहाँ आया और मुझे फ़ोन पकड़ा कर चला गया। ये आईफोन था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने फ़ोन को खोला तो इस पर एक नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो मैं डर गई, फिर ओके करके कान को लगाया तो दूसरी तरफ मेरा शौहर था। लेकिन हैरत का झटका तब लगा जब उसने मुझे बहुत करख्त लहजे में दोबारा इस कमरे के पास जाने से मना किया। अब तो मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर है क्या था इस कमरे में जो सब इस कमरे में जाने से मुझे रोक रहे थे, और घर का वो हिस्सा अंधेरे में क्यों डूबा हुआ था। मैंने फ़ोन बंद किया तो मुझे रात के होने का इंतज़ार था। मैं रात के वक्त अपने कमरे से निकली तो आज मेरे मुलाजिम मेरे दरवाजे के आगे नहीं थे। घर पर खामोशी का राज था। मुलाजिम न जाने कहाँ गायब थे और घर वाले तो वैसे ही नजर नहीं आते थे। मैंने खामोशी से इस कमरे की तरफ रुख किया। एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद मैं इस कमरे तक पहुंची थी। आज इस कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने खामोशी से दरवाजे पर हाथ रखा और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ एक औरत थी जिसको बेदर्दी से बांध कर रखा हुआ था। इसके मुंह में कपड़ा भी दिया हुआ था और वो रोती हुई सर दाएं बाएं मार रही थी। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं हैरत से इस औरत की तरफ देख रही थी जिसकी हालत बहुत बुरी हुई हुई थी। अभी मैं कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि मुझे अपने बहुत पास एक साया सा महसूस हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर मेरे पीछे खड़ा हुआ था। इसने आओ देखा न ताओ मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। मैं ऊंधे मुँह कमरे में जा गिरी। अभी मैं उठकर वापस मुड़ती कि उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं खौफ के मारे चीखती रही और कमरे का दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन ना किसी ने खोलना था ना खोला। मैं इस औरत को देखने लगी जब खामोशी से मेरी तरफ ही देख रही थी।
मैंने इस औरत से पूछा कि वो कौन है, तो इसका जवाब सुन के मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जब उसने बताया कि मैं इसी आदमी की बीवी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ कैद किया हुआ है, ये आज से पहले न जाने कितनी औरतों को यहाँ लाया और उनको आगे बेच देता है, मैं इसकी पहली बीवी हूँ, मैंने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी, तब से इसने मुझे ऐसे कैद में रखा हुआ है और मुझ पर ऐसे ही जुल्म करता है, कभी खाना देता है तो कभी नहीं देता। मैं तो यहाँ पड़ी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, अब तुम भी यही करोगी, क्योंकि ये ऐसे ही पैसे की लालच में गरीब घराने की लड़कियों से शादी करता है और उनको बाहर के मुल्क बेच देता है। ये जो जेवर तुमने पहन रखा है ये सब हराम के पैसों का है, मासूम लड़कियों की इज्जत पमाल होने के बदले ये जेवर तुम्हें मिला है। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मुझ तक आती थीं और मेरी बात सुनने से पहले इस मुल्क से गायब हो जाती थी। मेरे तो तोते उड़ गए। इसकी बात सुनकर एकदम मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मा अब्बा का चेहरा लहरा गया। ये मेरी सजा थी जो अपने माँ बाप को तकलीफ देने की वजह से मुझे मिली। मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ जैसे गले में रुंध गई। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गई और बहुत सी दुआएं मांगी, लेकिन मेरी सजा शायद ज़्यादा बड़ी थी। तभी मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। 2 दिन के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब तो भूख से बेहाल होती मैं भी ज़मीन पर बैठ गई थी। कब दिन से रात और रात से दिन हुए पता ही न चला। मुझे अपने शौहर के बेटे के पहले दिन की बात याद आ गई, जब उसने बोला था कि आपको अब्बा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब कि वो सब जानता था। दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ वही मुलाजिम खड़ा था जिसने मुझे इधर आने से रोका था। मुझ में जैसे जान आई थी, मैं भागकर उसके पैरों में गिर गई और उसे यहाँ से रहाई की भीख मांगी, जिस पर मेरे शौहर की साबका बीवी ऊंची ऊंची कहके लगाने लगी। मुझे भी इस औरत से भी अजीब सा खौफ आ रहा था। मुलाजिम ने मेरे आगे खाना फेंका और दरवाज़ा दोबारा से बंद करके वापस चला गया। औरत दोबारा से बोलने लगी कि खुश नसीब हो जो 2 दिन के बाद ही दोबारा खाना मिल गया, वरना मेरी तो किस्मत देखो जिसको एक हफ्ते में गिनकर 2 बार खाना मिलता है। मुझे अपनी गरीबी आज बहुत याद आई। खाने की तरफ देखा तो वहाँ सब्जी और प्याज साथ बासी रोटी थी। मैंने अपने घर भी जितनी मर्तबा रोटी खाई थी, अम्मा हमेशा ताज़ा रोटी देती थी। मैंने खाने को पीछे किया और खुद घुटनों में सर रखकर रोने लगी। और फिर जब भूख हद से ज़्यादा हो गई, मज़ीद 1 दिन पुरानी रोटी और प्याज खा लिया, क्योंकि सालन 1 दिन गर्मी पर पड़े रहने की वजह से ख़राब हो चुका था। मुझे अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। अम्मा की बातें भी याद आने लगी। पैसे से एकदम से नफरत हो गई थी। कुछ रोज़ गुजरे तो कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और अब की बार मेरे शौहर के साथ वही मुलाजिम जो खाना देने आता था, वो और 2 हबशी नुमा मर्द थे। मेरे शौहर की बात पर मेरी रूह काम गई जब उसने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि ये लड़की है जिसको बेचना चाहता हूँ। मेरा वजूद जलजलों की जद में आ गया। मुलाजिम मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। मुझे उसके देखने से उलझन महसूस हो रही थी। मेरा शौहर और वो हबशी नुमा मर्द आपस में कोई बात करते रहे और मेरा ध्यान बस मुलाजिम के देखने की तरफ था। मेरा शौहर बाहर गया तो मैं फिर से आंसू बहाने लगी। एक काज से मुलाजिम की तरफ देखा, जिस पर उसने मेरी तरफ एक कागज़ फेंका और बाहर चला गया। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर की साबका बीवी से नज़र बचाकर कागज़ खोला तो इसमें लिखा था कि आज रात मैं तुम्हारी रिहाई करवा दूंगा। उसी रात मेरा मुलाजिम मुझे रिहा करवा कर ले गया। मुझे एक कमरे में रखा, खाने पीने के लिए दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। महल जैसे घर में शादी हुई थी, पर मेरा शौहर बुढ़ा था। घर का मुलाजिम मुझे कहता, पैसों के लिए इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करती हो, मेरे साथ भाग चलो। पहले तो मुझे इसकी बात पर हैरानगी हुई कि ये मेरे शौहर का काबिल एतबार नौकर है, फिर भी मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। जब ही अपने बुढ़े शौहर को छोड़कर इस मुलाजिम के साथ भाग गई। पहले बहुत खौफ महसूस हुआ, लेकिन अब ये कदम उठा चुकी थी। कुछ करती तो मारी जाती, अगर वापस जाती तब भी मारी जाती, लेकिन दिल में खौफ भी था, न जाने क्या होगा मुस्तकबिल में। जब 3 घंटे के सफ़र के बाद इस मुलाजिम के साथ नई बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी, दिल तो तब बंद हुआ जब बस ड्राइवर और बाकी लोगों को देखा। मैं वहाँ से भागने लगी थी क्योंकि वो सब ने शराब पी रखी थी, लेकिन मुलाजिम ने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। मैंने हैरानगी से मुलाजिम की तरफ देखा तो उसने मुझे खामोश रहने का बोला। अब मेरी जान निकल रही थी कि न जाने मुझे मुलाजिम कहाँ लेकर जा रहा है। एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रुकी। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। सब शराबी धुत अपने ही अंदर मगन थे। मेरे मुलाजिम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी से उतार दिया और अपने साथ लेकर चलने लगा। एक लंबी मुसाफिर तय करने के बाद हम एक जगह रुके। वहाँ खंडरात ही खंडरात थे। वीरान जगह पर मुलाजिम ने मुझे छोड़ा और मुझे वहाँ ही रुकने का बोलकर खुद न जाने कहाँ चला गया। मुझे वीराने से खौफ महसूस हो रहा था।
آج اپنی بے عقلی پر رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ اپنے اماں ابا کی باتوں کو سوچ سوچ کر میں رو رہی تھی۔ جب میرا ملازم دوبارہ سے میرے پاس آیا، اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ آج رات ہمیں یہاں ہی رہنا ہے، قیامت تو تب ٹوٹی جب یہ پتا چلا کہ ایک رات مجھے نامحرم کے ساتھ تنہا رہنا پڑے گا۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اکثر اوقات زندگی آپ کو ایسے ایسے رنگ دکھاتی ہے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس موڑ پر بھی کھڑی ہوں گی جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ آج اپنے والدین کی وہ تلخ باتیں یاد آ رہی تھیں، ان کا محنت سے رزق کمانا یاد آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری، اگلے صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی جب میرا ملازم میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ دن سے شام اور شام سے پھر رات ہو گئی، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں تنہا راستہ بھٹکتی نہ جانے کون سے شہر، کون سی نگری میں پہنچ گئی تھی۔ ہر ایرا غیرہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بری عورت ہوں۔ میں اپنا آپ چھپاتی، سب کی نظروں کو برداشت کرتی ایک لمبا راستہ طے کرنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ اس سفر میں نے کیا کیا برداشت کیا، یہ سوچ کر ہی آج میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے سخت ترین وقت یہی تھا جب میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اب نکل تو میں پڑی تھی، اب خود کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ پہلے 2 دن تو میں بھوکی پیاسی ہی رہی، بھیک مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کس سے بھیک مانگتی؟ ایک دکان پر جا کر رکی، اس آدمی سے اللہ کا واسطہ دے کر ایک پانی کی بوتل لی۔ اس کو بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی 2 باتیں سنا کر اپنے باقی گاہکوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا۔ چلتے چلتے اب میرے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ میں ایک گھر کے باہر جا کر رکی اور گھر کی بیل بجا دی۔ ایک بوڑھی سی عورت چھڑی کی مدد سے باہر آئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ضعیف عورت کو دیکھا تو مجھے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور اس کو بولا کہ میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ میری حالت دیکھ کر شاید اس عورت کو مجھ پہ ترس آ گیا تھا، تبھی اس نے مجھے کافی کھانا دے دیا جو میں نے وہاں پیٹ بھر کر کھایا اور کچھ ساتھ لے آئی۔ رہنے کا مستقل ٹھکانہ کوئی تھا نہیں، تبھی در در بھٹکتی میں پھر رہی تھی۔ 2 دن وہ کھانا بمشکل چلا اور پھر گرمی کی شدت سے وہ کھانا بھی خراب ہو گیا۔ ایک روز میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری روح تک کام گئی۔ مجھے اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں میرا شوہر اور میرے شوہر کا وہی ملازم تھا جس کے ساتھ میں بھاگ کر آئی تھی۔ اس سے پہلے میں بھاگتی، میرے شوہر کے ملازموں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ میرا شوہر مجھے پھر سے اسی قید خانے میں لے گیا جہاں سے میں نکل کر آئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں کسی حبشی کے ہاتھ بیچ دیا جو مجھے بیرون ملک لے گیا۔ وہاں نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے خریدا اور کتنوں نے بیچا۔ پھر شاید میری آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، تبھی مجھے پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں آ کر میں اپنے نئے مالک کے چنگل سے بھاگ نکلی اور وہاں سے نکلنے میں میری مدد اس کے ایک ملازم نے کی، مجھ پہ ترس کھا کر کی۔ میں نے اس کے ایک ملازم کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے التجا کی کہ مجھے یہاں سے بھگا دو۔ اس بار اللہ بھی میرے ساتھ تھا، تبھی 2 مہینوں کی بھاگ دوڑ کے بعد میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی، اپنے گاؤں، اپنے اماں ابا کے پاس۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میری اماں مجھے دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگیں۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے سامنے اپنی اماں کو دیکھ کر میں ان سے لپٹ کر زور زور سے رو دی، لیکن اماں کی اگلی بات نے جیسے میری جان نکال دی جب اماں نے بتایا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، 3 مہینے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم نے تمہارے سسرال خبر بھی پہنچائی، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم وہاں نہیں ہو، نہ جانے کہاں چلی گئی ہو۔ تمہارے شوہر نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ میری اماں مجھ سے سوال کر رہی تھی، لیکن میں اپنے ابا کی موت کا سن کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی میرا دماغ مفلوج کر رہی تھی کہ میں اپنے ابا کی موت کی وجہ بنی ہوں۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ ابا کی موت کیسے ہوئی تو اماں کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہم لوگوں کو پالنے میں، لوگوں سے نہ جانے کتنا ادھار لے لیا تھا، لیکن اتارنے کی باری آئی تو ابا کی بیماری نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکیں۔ تبھی اسی فکر سے ان کا بلڈ پریشر تیز ہوا اور ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں۔ یہی وجہ تھی ابا کی موت کی۔ اب مجھے مزید خود کی ذات سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ خود کی جان لے لوں۔ اماں ابا بچوں کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کرتے، اور بچوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب آسمان سے اتر رہا ہے، اور ماں باپ جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ترساتے ہیں۔ میں اس رات بہت روئی، اپنے ابا کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ یہ شاید میرے گناہوں کی سزا تھی۔ زندگی اکثر اوقات ایسا سبق سکھاتی ہے کہ انسان امتحان دینے کے قابل نہیں رہتا۔ میں اب اپنی اماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ مجھے ہر وقت ایک ہی خوف رہتا کہ کہیں کوئی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر تک نہ آ جائے،
वक्त के रहते मैंने अम्मा को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी अम्मा को मुझ पर तरस आया, माँ थी, तभी मुझे अपने सीने में छुपा लिया और मुझे हिम्मत दी कि वो मेरे साथ हैं। मुझे मज़ीद शर्मिंदगी हुई कि जब मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत थी, मैं इनसे अपना हाथ छुड़ाकर पैसों के पीछे भाग निकली और पैसे की हवस ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। और आज मेरे मुश्किल वक्त में मेरी अम्मा मेरे साथ खड़ी हैं। अम्मा अब्बा लाख तलख बातें कर लें, लेकिन वो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अब मैं यही दुआ करती हूँ कि कोई भी बेटी गलत रास्ते पर न भटक जाए, अपने माँ बाप की इज्जत पमाल होने से बचा लें। ये सब एक बेटी के हाथ में होता है। आज मैं कम कमा रही हूँ, आज मेरे पास बेशक पैसे थोड़े हैं, लेकिन इस अमीरी से लाख बेहतर है जो आपको किसी दर का न छोड़े। मैं इस काबिल तो ना थी कि अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती, लेकिन मैं हर नमाज के बाद अब हर बेटी और बहन और हर लड़की के लिए दुआ करती हूँ कि किसी को मेरे शौहर जैसा शौहर ना मिले। कई दिन गुजर गए, एक रोज़ वही हुआ जिसका मुझे डर था। शाम के वक्त दरवाज़ा खटका तो मैं खौफ के ज़ेरे असर कमरे में छुप गई। अम्मा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरे शौहर का वही मुलाजिम खड़ा था जिसके साथ मैं भागी थी। सामने इसी मुलाजिम को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वजूद में से जैसे जान निकलती जा रही थी, लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब मेरे शौहर का मुलाजिम आंसुओं के साथ रोता हुआ मेरी अम्मा के कदमों में गिर गया और मेरी अम्मा से इल्तिजा करने लगा कि मुझसे मिलना है। अम्मा ने मुझे बाहर बुलाया तो मैं डरी हुई बाहर आई। मुलाजिम उठा और मेरे कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए अल्लाह ने मेरी बेटी के साथ आपसे भी बुरा किया। मुझे उसकी बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैं खामोश रही। ये दुनिया मकाफात अमल है, जो बोया है वही काटना भी पड़ता है। और ऐसा ही मेरे शौहर के साथ भी हुआ। वो फालिज का मरीज़ बन चुका था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। उसी ने अपने मुलाजिम को मुझे तलाश करने का कहा और इत्तफाकन वो मेरे घर आया। ये कहना बेहतर होगा कि अल्लाह ने उसी को मुझ तक पहुँचाया। गम की रातें ढल गई थी। आज मैं थोड़े में भी खुश थी। अपनी अम्मा के साथ मिलकर एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। इस सब के बाद एक बात जो समझ आई वो ये थी कि हलाल हमेशा थोड़ा ही होता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।